Assalamu alaikum and hello everyone. I'm here again with another episode of program सोचिए. आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ वो बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए. बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ कोविड बहुत सारे लोग अपनी जॉब जो है उनको छोड़नी पड़ी या ले ऑफ कर दिए गए. बिकॉज़ ये सबके लिए बहुत नई सिचुएशन है. जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो कंपनीज थी, जब उनको खुद नुकसान होना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने लोगों को ले ऑफ करना शुरू कर दिया. नाउ बिकॉज़ आपका एक घर पूरा चल रहा है आपकी इनकम के ऊपर, आपकी सैलरी के ऊपर. जो सैलरी बेस्ड लोग हैं वो भी अफेक्ट हुए और जो लोग बिजनेस कर रहे थे वो भी अफेक्ट हुए. बट अगेन the more difficulty that people had to face is of the salary thing, because you know, even if you're doing your business, then you have some other ways to earn money. But when you were salaried for a longest period of time, you don't know, you know, how to go about in life or what to do now. You know, now I'm laid off, how to function, how to earn money. So आज मैंने अपने प्रोग्राम में HR की फील्ड से बुलाया है ज़ैन शाह को. उनका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर और इंटरव्यू लेने से लेकर और बहुत सारी चीज़ें ही हैज़ बीन हैंडलिंग. HR की हाईएस्ट पोस्ट पर वो रह चुके हैं और अभी भी काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स. सो वो हमें बताएंगे कि CV मेकिंग कैसी होनी चाहिए और अगर आप ले ऑफ हो गए हैं तो किस तरह अपना आप यू कैन अप योर स्किल और आप कैसे अपने आप को रेलेवेंट रख सकते हैं कि आपकी अगर तो जॉब चली गई है तो आप दोबारा कैसे एक्वायर कर सकते हैं और आप कौन सी मीडियम यूज़ कर सकते हैं. सो देयर इज़ सो मच नॉलेज दैट यू कैन गेन फ्रॉम टुडेज प्रोग्राम. सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम. Assalamu alaikum, how are you? I am fine, thank you so much for inviting me here. First of all, welcome. I would like to say that you're doing a great job, mashallah. Thank you so I much. saw your last show with Maria Basti. Really? Yeah, regarding the stereotypical roles जी. of women in the media जी industry. जी बिल्कुल. So I think this is something which has not been frequently touched upon. Yeah, I thought the same. That's and the main kudos to you for purpose. doing a great job. Thank you so much. Thank you. I'm really glad that you watched the show. It's a new show and I'm really happy that, you know, at least it is getting noticed by Yes, I think people like you. definitely it will get noticed in future as well. The topics that you're touching are not very, you know, common topics. So I think inshallah in future as well. Thank you for the encouragement. Actually, this is the main purpose, you know, to talk about the issues that are less, you know, visited or, you know, less talked about. So Zain, I would want you to introduce yourself, you know, कब से आप काम कर रहे हैं HR की फील्ड में और आपका सारा background and all. Yeah, I've been associated with the HR field for about 15 years now. I've worked in multinational companies in telecom, oil and gas, IT, renewable energy, which is an upcoming industry in Pakistan. Wow. And also been part of the PPO industry, you know, when it actually started in Pakistan way back in 2003. उससे पहले I was also associated with the news channel. Oh, I that's used to be a amazing. newscaster, but that was a job that I did while I was studying. Okay, that's So overall HR में I've been around for about 15 years. Okay. So currently I'm doing my own HR practice, working with a couple of companies and helping to develop their HR and also helping the job seekers to probably get the right jobs. So this is what I'm doing currently. I think this is a very, very important thing, and everybody is kind of suffering, you know, because of the pandemic and all. And this job sector and the issues related to getting job, even sustaining, you know, the job has become a very big issue. Yeah, आप देखें कि pandemic एकदम से आया and it changed everything, right? So nobody was expecting it. Exactly. You know, from the organization's point of view, I can True. tell you, everybody was planning for growth. You know, because And then आपका this hit. at the end Yeah. of December, you do your, you know, business conferences and business planning, Absolutely. and you have the road ahead for the next year. Yeah. So everybody was planning Yeah, that. for growth, and all of a sudden, come March, you know, we are Yes. thinking about, you know, how to retain our current workforce because of the pandemic. Everything Absolutely. stopped. So I think this is like once in a lifetime, but not even once in a lifetime, but in fact once in a century kind of a thing, Absolutely. right? Because the last pandemic which happened was the Spanish Yeah. flu in Way back. 1918.
So almost 100 years now. So we're living in unprecedented times. That is so true. Or the job market has changed. Yeah. I can give you facts in terms of the jobs. Yeah. Like at the peak of Corona in US, Yeah. according to the Labor Department in the US, about 55 million people lost their jobs. And worldwide, the International Labour Organization, ILO, Yeah. quotes that there are about 200 million people who have lost their job Oh my in God, this yeah. pandemic. So definitely it's something which is unprecedented, and Yes, yes. a lot of Nobody people was are actually facing prepared. difficulties. इसमें. And I think that another thing which has happened as well is the way we are working has also changed, right? True. अब हम kind of एक work from home environment में चले गए, बिल्कुल बिल्कुल. जो कि हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि स्पेशली इन पाकिस्तान एक 9 to 6 वाली जो फिजिकल प्रेजेंस ऑफिस में थी Yes. रिक्वायर्ड, वो बड़ा ज़रूरी था बिल्कुल. कि आपने अपनी हाजिरी लगानी है, हाँ, हाँ, लेकिन अब उसकी भी बिल्कुल, काउंटिंग बिल्कुल. होती थी. Yeah. सो अब जो है हम वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में चले गए हैं, तो डायनामिक्स भी चेंज हो गए हैं. Absolutely. और फ्यूचर में भी डायनामिक चेंज ही रहेगा. हाँ. हम एक हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएंगे. अच्छा. So where which the hybrid model would be that you would be working say 60% of the time on site and 40% probably off site, which would be your work from home. Oh, okay. That's interesting. So वो सारी dynamics ही change हो गए. I think this the hybrid model I think is very interesting, and I feel that maybe that is going to be the permanent future. And I think हमने challenges की तो बात की, but this is also an opportunity to redefine Yes. ourselves, the way we work. Exactly. अब जैसे Google का मैं आपको example देता हूँ. Google has told its employees कि in the near future they would be working from home. No matter what No happens. matter what. Twitter has said for life they would be working from home. Oh wow. The CEO of Twitter said that for life employees would be working from home. तो ये challenge ज़रूर है, हाँ. but there's an opportunity. What I foresee is कि आप देखें opportunity क्या है कि अब आप universally available हैं. Yeah. For instance, पहले आपको एक physical presence चाहिए थी, ठीक right? ठीक अभी आपको physical presence नहीं चाहिए. ठीक. आपके पास अगर you have certain skill Yeah. and आप digitally savvy हैं, आप गूगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप Wow, yeah. ट्विटर के लिए भी कर सकते हो. वो एक फोरम आपके पास अवेलेबल है, Yes. जो प्रॉब्ली शायद प्री कोरोना कोई इमेजिन भी इतना नहीं कर नहीं सकता था. था. प्लस वुमेन पर्सपेक्टिव से आप देखें, औरतों के लिए भी जी, एक work from अपॉर्चुनिटी है, True, true, true. बिकॉज पहले Absolutely. औरतों का एक बहुत ज़्यादा बैगेज था कि अपने Yeah. घर भी संभालना है, साथ बिल्कुल. ऑब्वियसली बच्चों को भी देखना है. yeah. सो उनको they didn't have that kind of an opportunity Yeah. which they have right now. Exactly. I think for women, I would say that the baggage is still there in a sense that they have to work at home and work from home as True, well. true. so, Even so though it's men not as that. well, it's become Oh yeah. kind of a baggage. पहले तो आप घर से निकलते थे जी, और जी. पीछे Worries मिसेस you- आपकी संभाल रही है Yeah, सारा yeah, कुछ. Now when you're home, so आपकी एक्सपेक्टेशन घर की भी, वर्क फॉर होम भी है और वर्क फ्रॉम होम भी है. True. दोनों चीज़ें चल रही True, होती हैं. true. HR में ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक जगह होती है जहाँ कोई बैठा हो. आपका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, आपको लोगों की पोटेंशियल और चीज़ें नज़र आती हैं कि क्योंकि किसी में पोटेंशियल है और किसी में नहीं है, और कोई कितना प्रोडक्टिव हो सकता है और नहीं हो सकता. तो ये सारी सिचुएशन एक ऐसी है जिसमें आप गाइड कर सकते हैं कि हाउ टू स्टे रेलिवेंट in this time and how to stay relevant as a job seeker. So give us some tips Sure, and sure. ideas about it. I think it's very important because it's not just about people who are seeking jobs, but also people who are already employed. They need to Yes. stay relevant. Yeah. Good point. With their fields, with their current jobs as well. So उसमें अगर तो you're a job seeker, first of all I think if you want to stay relevant, Yeah. you need to first do a self assessment. ठीक ठीक है, हर आदमी के पास एक कॉम्पिटेंसी होती है. ठीक है, एक उसकी अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं. ठीक कुछ के पास मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज होंगी, स्किल्स होंगी, जिसको आप कह लें लेमैन के टर्म में. सही. कुछ के पास कम होगी, कुछ के पास ज़्यादा होगी, लेकिन आपको एज एन एम्प्लॉई या यू नो कि आपकी स्किल्स क्या है. हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है उसमें कि आपने उनको पॉलिश कैसे करना है. ठीक है. ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं HR में काम कर रहा हूँ और फॉर इंस्टेंस टैलेंट एक्विजिशन मेरी स्किल है, राइट, वो स्किल मैंने शायद अपनी जॉब लर्निंग से सीखी है. ठीक है, लेकिन मैंने उसको मजीद बेहतर कैसे किया है, ठीक. उसके लिए क्या मैंने कोई सर्टिफिकेशंस की हैं. ठीक है, कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, आपके पास लोकल सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं. ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है. ठीक है. HR किसी तरह IT के बंदे के लिए, फॉर इंस्टेंस आप एक बहुत अच्छे IT इंजीनियर हैं, हाँ. आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से NUS से ग्रेजुएट कर लिया, GK से कर लिया, बट आफ्टर 2 years 3 years हाउ डू यू स्टे रेलेवेंट. यस. सो आपने कोई सर्टिफिकेशन की, ठीक है, कोई आपने कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की कि कल को आप कहीं भी अप्लाई करें तो आपकी वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन
एक आपको एक्नॉलेजमेंट की तरफ ठीक अगर एम्प्लॉयर की तरफ से लेके जा सकती है। ठीक स्पेशली जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, जो हमने Yeah. पहले भी बात की Yeah. कि अभी तो आप एक यूनिवर्सल टैलेंट की तरफ देख रहे हैं। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशंस होंगी, ठीक ठीक है, अब वो एज एन एम्प्लॉई या एज अ जॉब सीकर आपका काम है कि अपने आप को सबसे पहले सेल्फ असेस करें। ठीक फिर आप देखें कि यार अच्छा, दिस इज माई टारगेट इन द नेक्स्ट मे बी 1 year 2 years, आई वांट टू अचीव दिस सर्टेन टारगेट। उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या माइलस्टोन्स सेट करने हैं, उसमें से ठीक वन ऑफ द की माइलस्टोन्स शुड बी इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक उस लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आप अपनी सर्टिफिकेशन करें। ठीक है ठीक है, अगर आप आईटी के बंदे हैं, आपको जावा में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है सो यू गो अहेड एंड फिगर आउट कि आपने कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है। सो सही। नंबर 1, सही जो हमने स्टेइंग रेलेवेंट की बात की, फॉर पीपल हु ऑलरेडी इन जॉब, या do these certifications. अच्छा, now people who've lost their jobs due to the एग्जैक्टली दैट्स अ pandemic. मेजर इशू तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि you're not the only one. ठीक है, there are about, as I've mentioned, about 160 million plus या employees who've been laid off due to this pandemic. तो सबसे पहले तो आपको उस सिंड्रोम से पहले निकलना है। ठीक है ना, कि जी मैं ही हूँ शायद, या हाँ। मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, हाँ या मैं हाँ कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। Exactly. और इसमें मैंने देखा है थ्रू डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग, पीपल हु बीन इन द Yes. business or been in employment for the last 15 years, they are now unemployed. वो और उनको जो है ना अपनी एक सेल्फ असेसमेंट और अपने आप को एक टच बेस करना कि यार हम मे बी कॉम्पिटेंट हाँ, हैं हाँ, कि बिल्कुल, नहीं है, तो वो बिल्कुल। उसमें इशू है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये सबके साथ ही तकरीबन है। ठीक सो यू नॉट somebody who's an exception in या this case. बिल्कुल बिल्कुल दूसरा, फिर आप देखें कि आपके पास मीडियम्स क्या अवेलेबल है अपने आप में इन्वेस्टमेंट के। ठीक है अब जो स्पेशली एक जॉब सीकर है, who he or she might not want to invest in terms of money right now, ठीक है। considering the overall या monetary they don't have situation. money so yeah what will they So do what they can do is they can look for free content. ठीक है, अच्छा। अब जैसे LinkedIn पे फ्री लर्निंग है, ठीक है, सो यू कैन गो एंड एक्सेस दैट। उसमें आपको अच्छे खासे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। दिस इज ठीक। लार्ज एक्सेस ऑफ लाइब्रेरी डेटाबेस, Okay. जो डिफरेंट टॉपिक्स पे आप वो कर सकते हैं। ठीक। इसी तरह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के कुछ फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। अच्छा सो देखें ना, अगर wow. आपकी सीवी पे सिर्फ यही लिखा हो सर्टिफिकेशन फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, Yeah, yeah. that automatically draws weight on your CV, Yes, right? yes, So कोई भी prospective employer होगा, जब वो देखेगा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सर्टिफिकेशन की है, बिल्कुल बिल्कुल so at least एक आपको अटेंशन तो आप ग्रैब कर सकते हैं, राइट? ट्रू ट्रू और आपकी अपनी लर्निंग भी साथ में। इसी Learning भी तरह साथ स्टैनफोर्ड के भी कोर्सेज हैं, इसी तरह यूडेमी के भी कोर्सेज हैं, Yes. कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। ठीक सो आई है। थिंक सबसे पहली चीज़ है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। डू नॉट stop in investing yourself. Yeah. right? And research about all these things. Research about all It's these a very good point that you've given to people that there are free courses as well. Free Most courses. people do not know that. And और आप साथ नेटवर्किंग करें, ठीक ठीक है, आर्टिकल शेयर कर लें, ब्लॉग शेयर कर लें लिंक्डइन ठीक पे। ठीक सो उससे आप एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करेंगे। सो व्हेन यू कन्वर्स विद पीपल, ठीक है, एंड दोज पीपल कुड बी फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट? ठीक लिंक्डइन एक ऐसा नेटवर्क है जिस पे आप डिफरेंट लोगों को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फोरम्स पे बातचीत कर सकते हैं। राइट तो जब आप कन्वर्स करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस और आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्टेन टॉपिक सब्जेक्ट, वो ठीक जब आप कन्वर्स करेंगे तो लोगों को पता लगेगा ठीक कि हाँ फरा XYZ Yeah. is discussing about this topic. That means this guy or this person or girl understands, has the सही। basic knowledge or understanding. सही। So that is also a platform जहाँ पे आप अपने आप को relevant कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट So वो इन्वेस्टमेंट अपने अंदर आपने नहीं छोड़नी, स्पेशली ये आप सोचें कि यार ये जो इन्वेस्टमेंट है ये रिटर्न आएगा, बिल्कुल ठीक है। बाकी तो हम एज मुस्लिम्स वी बिलीव बिल्कुल कि अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, बेशक बट ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट कहीं भी आपकी ज़ाया नहीं होगी। बिल्कुल It वो will आपकी always help you एफर्ट stay relevant. आपकी एफर्ट हैज टू बी देयर बिल्कुल। बिल्कुल। और आपका ये जो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे ले ऑफ हुए, ऐसे लोग जो कि सालों से काम कर रहे थे, एंड सो ये चीज़ बड़ा आपकी सेल्फ एस्टीम को हिट करती है। इट्स नॉट दैट इजी, वही बात है, ईजियर सेड देन डन, कि आप एक इतने अरसे से एक बड़े ओहदे पे हैं और आप यू हैव बीन डूइंग स्टफ एंड अब एकदम से आपको घर बैठना पड़ गया, तो इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। पर आपका पॉइंट, आई रियली लाइक दैट पॉइंट वेयर यू सेड दैट आप ये चीज़ को समझें कि इट्स नॉट जस्ट
with you. You know, it's not only happening with you. It is happening for everybody. You know, and it's all over the world that everybody is getting laid off and having difficulties with seeking new jobs. So it's a very good point to feel good about yourself. कि, okay, it's not that I don't have any capability or because I'm not good. Well, and I think अगर आप ये चीज़ सोचना शुरू हो जाए कि शायद मेरे अंदर मसला है, आई हैव बीन लेड ऑफ, तो आपने मेरा ख्याल है अपने चांसेस या अपॉर्चुनिटीज उधर ही किल कर दी, आप एक सिंड्रोम में आ जाएंगे फिर। और ऑब्वियसली थिंग्स विल नॉट गेट बेटर अनटिल अनलेस आप यू ट्राई। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर अगर समझ लेंगे कि नहीं यार मेरे अंदर शायद ये कॉम्पिटेंसी का मसला था एंड उसको लेके बैठ जाएंगे, तो आपने अपना गिव अप कर दिया स्टार्ट करने से पहली एफर्ट। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यू डोंट गेट इनटू दैट सिंड्रोम।